بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی سیاست کے دو پرانی روایتی حریف جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آج پھر 21 سینچری میں بھی، نئے دور میں بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ وہ ڈفرنسز جو آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان میں ایک زمانے میں ایک وقت میں ہوا کرتے تھے، اب ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈفرنسز بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ کے بیچ میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ سچویشن، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دونوں جماعتیں مل کر انڈر دا امبریلا آف پی ڈی ایم حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، عوام کو شاید ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے میں کامیاب ہو چکے تھے کچھ ٹائم کے لیے، لیکن وہ جماعتیں جو کہ حکومت کے خلاف ایک ہوئیں، اب ان کی توپوں کا رخ حکومت کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی طرف ہو چکا ہے۔ یہ کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، یہ سب ہم لمحہ بلمحہ چیزیں خود وٹنس کر رہے ہیں۔ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری متعدد بار رائیونڈ آتے ہیں، جاتی عمرہ جاتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے گھر پر کھانے کھاتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا تاریخ میں پہلی بار مریم نواز شریف صاحبہ جاتی ہے شہید محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پر، جو کہ لائف میں پہلی بار ہوا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے اس لیول پر، اس میگنیٹیوڈ پر پارٹیسپیشن کی جاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں لیڈران بلاول بھٹو اینڈ مریم نواز صاحبہ ایک نئی سیاست لکھ رہے تھے، لیکن نئی سیاست لکھتے لکھتے ایک دوسرے کو اب سلیکٹڈ کہتے نہیں تھک رہے ہیں۔ جب ان دونوں کے دیگر کارکنان، دیگر سینئر لیڈران، دیگر ممبرز پارٹی سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ایسی باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، غلط ہے، لیکن ساتھ ہی احسن اقبال صاحب بھی کنڈیم کر رہے ہیں، کائرہ صاحب بھی کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن پھر اپنی لیڈران کی باتوں کو انڈورس بھی کر رہے ہیں، تو معاملہ لگ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از ناٹ فائن۔ کیا 4 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سی ای سی کے بعد پی ڈی ایم سے راہیں جدا کر لے گی؟ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں ایک سیز فائر ہوگا یا پھر یہ معاملہ مزید بڑھے گا؟ یہ بھی ہم آج کی نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ معتبر پینلسٹ ہے میرے سامنے، آپ کے سامنے ان کا انٹروڈکشن رکھ دیتی ہوں۔ مسرت چیمہ صاحبہ نے مجھے جوائن کیا ہے، ترجمان ہے پنجاب گورنمنٹ کی، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی فارمر سینیٹر سحر کامران صاحبہ نے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی نثار چیمہ صاحب نے، سٹنگ ایم این اے ہیں، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ نثار چیمہ صاحب، آپ ہی سے میں آغاز کر لیتی ہوں آج کی ڈسکشن کا۔ وہ جلتی پر ایک آگ کا کام کیا مریم نواز شریف صاحبہ کے اس بیان نے جو انہوں نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد پریس کانفرنس کے اندر اس کو دوبارہ ریٹیریٹ کیا جب ان سے سوال پوچھا گیا، یہی کہ بھئی سلیکٹڈ تو پریشان ہو رہا ہے کیونکہ ایک نئے سلیکٹڈ پر کام کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب اس طرح کا بیان مریم نواز صاحبہ دیں گی اور پھر اس سوال کو اگر بلاول سے پوچھا جائے گا اور بلاول اس کا جواب نہیں دیں گے، اگر جواب دے رہے ہیں تو اب آپ لوگ کو پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے بینی، سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے پوری قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس خواہش کا اور اس دعا کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم تمام لوگ جن کا اس کسی شعبے سے تعلق ہے، کسی واک آف لائف سے تعلق ہے، ہم سب لوگ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر، سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر، لسانی اور صوبائی تعصبات سے بالاتر ہو کر، تمام تر مفادات سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اس ملک اور قوم کے مفاد میں سوچیں، اور وہ جو عظیم تر مقاصد تھے جن کے پیش نظر اس عظیم مملکت کا قیام بارز وجود میں آیا، جو بانیان پاکستان کے ذہن میں تھے، ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم مل کر کوشش کریں۔ وہ مقاصد کیا تھے؟ آپ کو پتہ ہے وہ مقاصد تھے کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کا قیام، یہاں پہ آئین کی حکمرانی اور وہ آئین کی بالادستی، یہ وہ خواب تھے جو بانیان پاکستان نے دیکھے تھے۔ اس ملک کو ایک مثالی اسلامی فلاحی مملکت بنانا تھا، جمہوری مملکت بنانا تھا، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی کوششیں جو ہیں وہ یقیناً بہت قابل تحسین ہیں، اور جن اختلافات کا آپ نے ذکر کیا، مجھے یقین ہے کہ چونکہ عظیم تر مقاصد جو ہیں اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں میں۔ مقاصد جو ہیں دیکھیں، ایک تو مقصد یہ ہے کہ ووٹ کے تقدس، ووٹ کی حرمت کو ہر قیمت پہ یقینی بنایا جائے، کسی کو الیکشن چوری کرنے کی اجازت نہ دی جائے، تاکہ عوام کے حقیقی نمائندے جو ہیں
वही बरसर इक़्तिदार हैं, वही कौम और मुल्क की बागडोर संभालें, और ताकि ये है कि वो जो हकीकी मकसद जिनकी तरफ मैंने इशारा किया है कि हकीकी जमहूरियत का क़याम और कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती, ये मकासद जो है हम हासिल कर सकें। इस हवाले से मुझे यकीन है कि PDM में शामिल किसी जमात में, यानी पीपल्स पार्टी समेत, कोई भाम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई उसमें डिफरेंस ओपिनियन नहीं है। हाँ, स्ट्रेटजीज़ के हवाले से, लाए अमल के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, और वो एक ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन होता है। उसमें बाज़ औक़ात जोश खिताबत में हम बाज़ ऐसी चीज़ें भी कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है बिरिश कि इंशाअल्लाह अजीम तर मकासद के लिए PDM कायम भी रहेगी, और हम इंशाअल्लाह ये जो PTI हुकूमत का जो अज़ाब मुसल्लत हुआ है इस मुल्क पे, जो कर दिया गया है, उससे निजात के लिए हम इंशाअल्लाह अपना किरदार मिलकर अदा करते रहेंगे। दीवाने का ख्वाब मालूम होता है आपकी गुफ्तगू से। आपका पॉइंट आ गया। सहर कामरान साहिबा, बिलावल भुट्टो ने कल मजीद जलती पर तेल डाला, जहां पे मरियम ने जलती पर तेल का काम किया, अपना वो बयान ट्वीट करके और उसके बाद उसको री एंडोर्स करके सहाफी के सवाल के जवाब में। उसी तरह बिलावल भी कुछ कम नहीं निकले। बिलावल ने वाज़े तौर पर यह कहा कि भाई अगर मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट की बात का जवाब देना है तो वो मेरी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट देगा। जवाब फिर भी उन्होंने दिया कि सिलेक्टेड का खून मेरी रगों में नहीं दौड़ता। वो पंजाब का, लाहौर का एक खानदान है जो कि सिलेक्टेड होता चला आया है। इट वॉज इन अ बैड टेस्ट। कायरा साहब को मैं सुन रही थी, एहसन इकबाल साहब को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोनों अपनी अपनी लीडरान की बात को एंडोर्स भी कर रहे हैं। वो कह रहे जो उन्होंने कहा ठीक कहा, तो फिर तो सहर मामला वहीं का वहीं रहा ना। फिर कैसे ये जो निसार चीमा साहब कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, PDM इकट्ठी हो जाएगी, फिर कैसे ठीक होगा? सब कैसे इकट्ठे होंगे अगर पिछली बातों को ही नहीं भूला जाएगा? तो शुक्रिया बेनिश। मैं भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान रिपब्लिक डे के यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देती हूँ। यकीनन आज का दिन बहुत अहम है इस लिहाज से भी कि हमें न सिर्फ पाकिस्तान की असास का तहफ़्फ़ुज़ करना है, बल्कि जो पाकिस्तान आईन पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का निज़ाम है, जो पाकिस्तान का इस्तेकाम है, उसके लिए न सिर्फ जद्दोजहद करनी है बल्कि इस्तेकाम के लिए जो है हमें कंट्रीब्यूट करना है। आपने जो बात की, मैं समझती हूँ कि यकीनन ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए था। आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया अपने इंट्रो में, तो हमने ये भी देखा कि जब मरियम साहिबा के लिए कोई बात हुई तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, चाहे वो ऐवान था, नेशनल असेंबली थी, चाहे वो और कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म था, चाहे वो कराची में होने वाला वाक़या था, उन्होंने बड़े बुलंद आवाज़ के अंदर जो है वो उन्होंने उनका दिफा भी किया और साथ भी दिया। और मैं समझती हूँ कि देखें, पार्टीज के अंदर जो है इख्तलाफात हो सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ सोच है, और शायद ये कि ऐसे वक्त में जब हम सेनेट के इलेक्शन के बाद जो है इस तगोदो में थे कि जी जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जिस तरीके से चोरी हुआ, उस 2 दिन के दौरान जो है वो शायद आपस में कुछ मुशावरत करके PDM की कुछ जमातों ने एक सोच बना ली कि ऐसा होना चाहिए। जब उस सोच के मुखालिफ कोई बात आई तो शायद वो उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन ये तमाम चीजों को तय करने का जो प्लेटफॉर्म है वो PDM का है। अगर कोई बात भी हुई तो वो एक अच्छे एंड पर खत्म हुई कि पीपल्स पार्टी अपने CEC में जाके मशावरत करेगी। उसके बाद इस किस्म की मैसेजेस नहीं आने चाहिए थे जिनका हम जवाब जो है वो सरेआम दें, और बार बार जब आप मुझसे सवाल पूछेंगी तो मैं उस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मजबूर हूँ जिस पे मैं नहीं करना चाहती। मेरे नजदीक जो है PDM का बहुत एक ऐसा अहम एजेंडा है जिसको लेके हम चल रहे हैं, क्योंकि आज जब हम इसकी बात कर रहे हैं और यकीनन मुसर्रत साहिबा मुस्कुरा रही हैं, लेकिन इस बात से आप नहीं इख्तलाफ कर सकते कि आज पाकिस्तान जिन आजमाइशों से गुजर रहा है। आज एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी जितनी तल्ख है, आज जो है जिस तरीके से जो चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ रहा है, आज जितनी बैड गवर्नेंस है, मेरा ख्याल है कि हम अपनी जो है वो तवज्जो उन इश्यूज पे मरकूज रखें। और ये जो मामलात हैं, मैं ये कहूँगी कि इनको मजीद हवा देने के बजाय अगर आपको कोई इशू है तो मरियम साहिबा फोन उठाए और वो बिलावल को अगर भाई कहती हैं तो छोटा भाई समझ के बात करें, और इस तरीके की बजाय ये कि ऐसे मैसेजेस दें और फिर कोई रिपोर्टर पूछे कि जी आपको ये कहा गया है और उसको रंज हो। मैं ये समझती हूँ कि ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए। ना ही हम अपनी सोच को इतना बुलंद कर लें कि आपकी सोच के ऊपर जो है वो बाकी जो हमारे सामने जो इश्यूज हैं वो जो है उनकी अहमियत कम हो जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसी कोई चीज नहीं थी। जिन इश्यूज को लेके हम आगे चल रहे हैं वो तमाम बातें बैठ के तय हो सकती हैं, चाहे वो सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन की बात है, चाहे वो इस्तीफों की बात है। पीपल्स पार्टी का एक अपना नजरिया है
हम समझते हैं कि एक पार्लियामेंट को मुस्तहकम होना चाहिए और हमने इस बात को भी सोचा कि इस्तीफों का वक्त कौन सा होना चाहिए। आज हम इस्तीफे दे दें और हमारे जो 45% इस्तीफे हैं उनसे अगर हुकूमत नहीं गिरती और बाई इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या हम अपने हाथ काट के तो नहीं हुकूमत के हाथ में दे रहे हैं? क्या हम दोबारा बाई इलेक्शन में जाएंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे तो नताइज क्या होंगे? ये तमाम अवामिल हैं जिनको पार्टी के अंदर भी डिस्कस करने की जरूरत है और पीडीएम के अंदर भी डिस्कस करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल है कि अगर स्ट्रेटजीज में जैसे सीमा साहब ने कहा, और मैं समझती हूँ हर मैच्योर पार्लियामेंटेरियन ऐसी ही बात करेगा कि हम जो है इफ़हाम और तफहीम के जरिए इन मामलात पे आगे चलें और इनको मजीद जो है एक ऐसी अगर कोई बातें हो गई हैं तो उन बातों को खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। सियासी गोलाबारी एक तरफ, लेकिन जो जातियात पर बात कर दी, अभी आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया सहर, बड़ा अच्छा लगा। आई एम श्योर कि चीमा साहब को भी अच्छा लगा होगा कि मरियम डायरेक्टली फोन कर लें बिलावल को। बिलावल भी तो कर सकते हैं मरियम का फोन, इट कैन बी आइदर वेज ना। ऐसे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आपने आइडिया दिया, क्योंकि दोनों के बीच में एक वर्किंग रिलेशन है, तो बिलावल भी तो फोन कर सकते हैं। अब जाहिर बात है उन्होंने पर्सनली जातियात पर एक बयान दे भी दिया, विच वाज सो अनलाइक ऑफ बिलावल, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि उन्होंने कह दिया कि भाई मैं अपनी लेवल का नहीं समझता, उसके बाद उन्होंने जवाब भी दे दिया, तो वो भी तो फोन कर सकते हैं। हम जस्ट आस्किंग, क्या पता कर लें, हो सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि वो कहते हैं ना आपके इर्द गिर्द दाना दोस्तों का होना बड़ा जरूरी है। मैं समझती हूँ एक स्टेटमेंट को इग्नोर किया गया, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट। आज जो मरियम की सहेलियां हैं वो जिस किस्म के ट्वीट्स कर रही हैं वो कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ रहे। मैं समझती हूँ कि ये तमाम उन लोगों को जो कि स्पॉयलर्स हैं देखना चाहिए है कभी कि आप मजीद फिजा को जो है आलूदा ना करें और चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाएं। बिल्कुल बेहतरी की तरफ लेके जाए। लेट मी ऐड पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा कॉन्वर्सेशन को, डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए। आप खुश लग रही हैं, खुश होंगी भी यकीनी तौर पर। मैं 26 मार्च के हवाले से तो आपसे सवाल करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ अभी यहाँ पे स्पॉयलर्स का जिक्र आया, ऐसे मैं आपसे पूछ रही थी, जब से ये मामला हुआ है ना, ये मरियम ने ट्वीट कर दी, फिर सहाफी के सवाल के जवाब में भी बात कर दी, फिर बिलावल ने सहाफी के सवाल के जवाब में एक पर्सनल सा कॉमेंट कर दिया विच रियली डिडंट वेंट वेल। उसके जवाब में मोहम्मद जुबैर साहब ने भी बता दिया भाई सियासी बात का जवाब सियासी होना चाहिए, जातियात नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें जहां एक तरफ चल रही थी, हमने देखा कि ओवरनाइट कुछ नए अकाउंट्स बने ट्विटर पर और कुछ लोगों ने पीएमएलएन के लोगों को, कुछ लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को मजीद लड़वाने की कोशिश की। जस्ट आस्किंग, वो आप लोगों के तो अकाउंट्स नहीं है ना, आप लोग तो इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठा रहे होंगे ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच बेनिश। सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी अवाम को, आज बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए और हमें खराज तहसीन, खराज अकीदत और दुआओं का नजराना पेश करना चाहिए उन तमाम लीडर्स को जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास की। और आज इस खित्ते में चाहे वो इंडिया के अंदर रह जाने वाली माइनॉरिटीज हैं और पाकिस्तान में भी एक तबका था जो दो कौमी नजरिया के खिलाफ सवाल उठाता था, तो उनको फिर मोदी के जो एक्शंस थे और जो इस्तेसाल हुआ माइनॉरिटीज का इंडिया में जो कि आज तक हो रहा है, तो फिर सब ने रियलाइज किया कि जिन्ना वाज राइट और ये इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन लीडर्स ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया। तो सबसे पहले तो आज हमारे लिए बड़ा दिन है और इस दुआ के साथ कि हम सारे मिलकर पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम, मजबूत और हमारी आने वाले नस्लों के लिए इसको हम ऐसा बना के छोड़ के जाएं जिसमें वो हर तरह की नेमतों के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। जहां तक रहेगी बात पीडीएम की, तो ये अकाउंट्स की बेनिश देखें, इन चीजों की इंपॉर्टेंस तब होती है, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल और कुछ बीच में साजिश करने की कोशिश की जाए तो इस तरह के फेक अकाउंट्स की जरूरत होती है। जबकि मैं नाम ले देती हूँ, हिना आप जानती है, मेरा ख्याल है कि वो पार्लियामेंटेरियन है और वो हमेशा अपना दिमाग, अपनी जुबान कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती। वो मरियम के कहने पे जो अच्छा, वो है नहीं यहाँ पर, वो है नहीं लोगों की, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर दूं ना, मैं ट्वीट का जिक्र कर रही हूँ, आप ट्वीट का जिक्र कर रही हैं, आप एडजेक्टिव्स यूज कर रही हैं ना, दिमाग इस्तेमाल नहीं करती, तो यहाँ पे तो लोग है नहीं डिफेंड करने के लिए अपने आप को। जी अच्छा, मैं उनका नाम ना ले जो यहाँ पे डिफेंड नहीं कर सकते, मैं कंप्लीट कर लूं। जी अच्छा, उसमें मरियम के कहने पे मैं ऐसे कह देती हूँ, कुछ लोगों ने जो कि पार्लियामेंटेरियंस हैं जो ट्वीट कर दिया है कि उन्होंने जरदारी साहब को आस्तीन का सांप कह दिया, वो अननोन अकाउंट नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अननोन अकाउंट की इंपॉर्टेंस तब होती जब ये आपस में देखें, जो मरियम ने जुबान इस्तेमाल की तो बिलावल ने तो फिर थोड़ा सा सेंसिबली मेरा ख्याल है कि लपेट के जवाब दिया, ओपनली नहीं किया। दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें बात
اب یہ کہ یہ تو بہت ہی چائلڈش سی بات ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی ان کو ان نون اکاؤنٹ سے، یہ اتنے چوچے نہیں ہیں جو روٹی کو چوچی بولتے ہیں کہ جو ان نون اکاؤنٹس کے کانسپائریسی کے اوپر یہ دونوں جماعتیں لڑ پڑیں گے. انفیکٹ آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت برے طریقے سے اگر پی ایم ایل این نے ان کو ڈچ کیا گیلانی صاحب کو ووٹ نہ دے کر کے تاکہ وہ چیئرمین سینٹ نہ بنے، تو انہوں نے بھی اپنا جواب لے لیا. بات اتنی سی ہے. جہاں تک اب میں اس کو اور کلیئر کر دوں، دوسری جو اس میں کلیئرٹی ہے، جو ہم پہلے دن سے آپ کے بھی شوز میں بہت دفعہ ہمارے جتنے بھی لوگ آئے میرے سمیت، ہم یہ کہتے تھے کہ ہم اس پی ڈی ایم سو کالڈ کو سیریس نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یہ تمام پاکستان کے اندر اس وقت جو مسائل ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنے پڑ رہے ہیں ان کے موجد یہ ہیں، یہ پاکستان کو بگاڑنے والے ہیں. جب اکٹھے ہوئے تو ایجنڈا کیا ہے؟ عظیم تر مفاد کیا ہے؟ لوٹی ہوئی دولت کو بچانا اور آنے والی کرپشن جو ان کی نسلوں نے کرنی ہے، جو کہ حمزہ، مریم اینڈ بلاول کی شکل میں، اس کو سیف گارڈ کرنا، اس کی لائسنسنگ مزید اچھی کرنا. تو بیسیکلی ایجنڈا جو عظیم تر مفاد تھے ہی نہیں، اس لیے عوام نے ان کے اس بیانیوں کو ریجیکٹ کیا، ملک دشمن بیانیوں کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا جتنا باقی آنریبل ممبرز کو دیا ہے. دوسری جہاں تک رہے گی بات، مجھے بریک ہمیں لینی ہے ان مسرت، سے آپ کا فکر پوائنٹ آ کرنے کی گیا. ضرورت ہے. وی آر فوکسنگ آن آر پرفارمنس، وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ ہنڈیاں ان کی چوراہے میں پھوٹنی تھی، سو پھوٹ پڑی، نہ پیٹ پھاڑا، نہ پہلے پیسے نکالے. ابھی بھی جو ڈرامہ تھا یہ صرف ڈرامہ تھا اپنے مفادات کو بچانے کے لیے. ان کا مطمئن نظر عوام نہیں کہ ہوتے تو سینٹ الیکشن پہ یہ 26 تاریخ پر بھی بات کریں گے، 26 تاریخ پر بھی بات کریں گے کہ کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے جہاں پر نیب نے جانا ہے. نیب دفتر کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، رینجرز طلب کر لی گئی ہیں، اس کی ایکسپٹنس جو ہے وہ اپروول بھی مل گیا ہے کہ رینجرز کو بالکل وہاں پر موجود ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحر کامران صاحبہ، نثار چیمہ صاحب، مسرت چیمہ صاحبہ جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ایک ہی بیٹا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتا. آصف علی زرداری کی یہ پی ڈی ایم میں گفتگو ہے. یہ وہ گفتگو ہے جو کہ کل میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہی تھی، ایک ٹی وی کے اوپر وہ اپنا انٹرویو، اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا. اب نثار چیمہ صاحب، آپ ہیں شریف آدمی، آپ چاہتے ہیں کہ جی باقی اور جیسے پی ڈی ایم کے لیڈران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آگ پر پانی ڈالیں اور کسی طرح معاملہ ٹھنڈا کریں. لیکن جب آپ لوگوں کو یہ نیریٹو بیچیں گے کہ بھئی میٹنگ کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کی اور جان بوجھ کر لوگوں کو یہ بابر کرانے کی کوشش کریں گے کہ جی زرداری صاحب ڈر گئے کہ جی میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو پھر کیسے دوستی ہوگی؟ کیسے دونوں پارٹی ساتھ چل سکیں گی؟ آپ اپنے وہ کہتے ہیں نا ہاؤس ان آرڈر، آپ اپنا ہاؤس ود ان آرڈر کریں نا. آپ دیکھیں کہ کیا بیانات دے رہے ہیں آپ کے لیڈران. دیکھیے بینش، میں تو بہت آپٹیمسٹک ہوں اور ہر حال میں پر امید رہنے والا شخص ہوں. اور اس معاملے میں پر امید اس لیے بھی ہوں کہ جو اصل مقصد ہے ہمارا پی ڈی ایم کی تشکیل کا، جو مقصد ہے اس حوالے سے تو آج بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں لائے عمل کے حوالے سے تو اختلاف ہے. نہیں، میری گزارش سن لیں. اسٹریٹجیز کے حوالے سے وہ جو گول اچیو کرنا ہے اس میں یہ کہ کون سی حکمت عملی اڈاپٹ کرنی ہے، کیا گول اچیو کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی اختیار پہلے کرنی بتائیں ہے. گول کیا اچیو کرنا ہے. میں تو خود دیکھیں بھول گئی ہوں پی ڈی ایم کا گول کیا تھا سر. میں تو خود بھول گئی ہوں. ابھی تو کھڈا اپوزیشن لیڈر سینٹ میں پڑا ہوا ہے، چیئرمین سینٹ میں پڑا ہوا ہے، استعفوں کا پڑا ہوا ہے. گول کیا پی ڈی ایم کا میں تو بھول گئی ہوں. بتائیں کیا گول ہے. میری گزارش سن لیں. جی، گول کیا ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور حقیقی جمہوریت کی بحالی. ہاں، ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ کے پہلے خان صاحب کو کہتے تھے آپ لوگ سلیکٹڈ، اب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. کو یقینی بنانا، عوام کی رائے کا احترام جو ہے اس کو یقینی بنانا، اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے آج بھی. اور یہ مقاصد جو ہیں اچیو کرنے کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ جو موجودہ حکومت ایک عذاب کی شکل میں مسلط کر دی گئی ہے اور اس کے 2.5 سالہ کارکردگی آپ کے سامنے ہے، جو ظلم اس نے ڈھائے ہیں اس قوم پہ، مہنگائی کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، لا قانونیت کی شکل میں، بیڈ گورننس کی شکل میں، جس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے. ستمبر سے پی ڈی ایم کی کارکردگی بھی سر ہماری سامنے ہے. پہلے اپنی اب حالت یہ ہے کہ چونکہ بینس دیکھیں حکمت عملی کے حوالے سے بڑی پارٹیوں کے درمیان کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، پارٹیوں کے اندر بھی آنیسٹ ڈفرنس اوپینین ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت جب مل بیٹھے گی تو یہ چھوٹے موٹے اختلافات جو ہیں، یہ چھوٹی موٹی یہ اس طرح کے جو بیانات میں سمجھتا ہوں جو نہیں آنے چاہیے تھے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں پہ قابو پا لیا جائے گا. آپ یہ زرداری صاحب کو ایکسپوز کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو چھوڑیں کچھ دیر کے لیے. 26 تاریخ کو ایئرنگ ہے. یہ مسرت چیمہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے ان کو ریڈ زون بنا دیا ہے، رینجرز کی اپروول مل گئی ہے، وہاں رینجرز ہونا ہے. 26 کو کیا کرنا ہے؟ ذرا اس طرف آئیں پہلے.
जरदारी साहब को बाद में देख लीजिएगा, जो उनके बारे में आपने बताना है। इस दफा आपके बट्टे बुट्टे कोई नहीं चल रहे सर। नहीं, एक तो बात ये है कि देखें, पीपल्स पार्टी पूरी पीडीएम का हिस्सा है और हिस्सा रहेगी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह। और क्योंकि अजीम तर मकसद के असूल के लिए हम इंशाल्लाह कोई मुकम्मल तौर पर यकसू हैं। 26 तारीख की जो बात आपने की, देखिए हमारा ये कल्चर है, हमारे यहाँ ये है कि अपने कायदीन के साथ यकजहती के लिए, यकजहती के इजहार के लिए लोग जाते हैं, तारीखों पे जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, कोई ऐसी बात। लेकिन हमने एक काम है, हमने वो काम नहीं करना जो कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने सिविल लाफरमानी की कॉल दी। हमने ना पुलिस पे हमले करने हैं, ना पीडीपी पे हमले करने हैं, हमने ये काम नहीं कर रहे। एक दूसरे को सिलेक्टेड अब आप लोग कहना शुरू हो गए। वो सिलसिला जो बिलावल साहब ने शुरू किया था इमरान खान साहब को फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपनी मेडन तकरीर में सिलेक्टेड कह के, और अब आप एक दूसरे को ये बातें सुना रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए 4 तारीख को हतमी जो ऐलान है वो क्या होने वाला है? आप लोग पीडीएम को खैरबाद कह रहे हैं कि आपने इनको पीडीएम से निकाल देना है, क्या करना है? लेकिन बीनिश, मैं समझती हूँ कि आपसे तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो ज्यादा अपनी तवज्जो रखें। पहली चीज ये है कि अभी आपने एक स्टेटमेंट का जिक्र किया राना सनाउल्लाह की, उसी प्रोग्राम में कायरा साहब ने जवाब दिया था, आप वो भी कोट करते थी कि देखें बात ये है कि बात किस पैराई में होती है, किस तनाजुर में होती है, उसको उसी तनाजुर में रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि मैं उन बातों पे को नहीं दोहराना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं समझती कि इस तरह की बातों को एक्सप्लॉइट करके या हम अपने अपने मतलब निकाल के हर बात से मजीद जो है वो इब्हाम पैदा करें। दूसरी चीज ये है कि जो मामलात हैं पीडीएम के कि किसको लीडर ऑफ अपोजिशन होना है, क्या नहीं होना है, ये तो आराम से बैठ के बात हो सकती है। ये बातें हमें मीडिया पे करने से मामलात का हल नहीं निकलेगा। हमारा एक अपना मौकिफ है कि गिलानी साहब का इलेक्शन चोरी हुआ और ना चोरी किया, डाका डाला गया, वोट्स जो है उनके वो छीन लिए गया। उसके बाद अब हमने केस भी किया है हाई कोर्ट के अंदर, उसके बाद भी वो वोट्स उनको देने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट के थ्रू हमने कहा है कि जी आपके मुस्तरद शुदा वोट्स हैं उनको पेश करें ताकि उस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन एक चीज थी कि आपको पता है कि नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो हमने उस असूल को फॉलो किया कि पीएमएलएन मेजॉरिटी है, तो लिहाजा उसमें हमारे साबिक सदर जरदारी साहब भी बैठे हैं, लेकिन जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन पीएमएलएन का होना चाहिए। इसी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए। इसी तरीके से जो है वो जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने रिजाइन किया तो पीएमएलएन से एक दूसरे साहब जो है राना तनवीर साहब बने, हमें कोई एतराज नहीं था। ये एक मतलब मैं समझती हूँ फराज दिली की बात थी, एक मामला फहमी की बात थी, ये हो जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है। 4 तारीख को हम क्या करें, 4 तारीख को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसके अलावा जो सीईसी की मीटिंग है उसके अंदर फैसला बाहमी मुशावरत से होगा। मेरे पास कोई इल्हामी ताकत नहीं है कि मैं ये सोचूं कि एक सबका एक विजडम होगा, जो एक मशावरत होगी वो क्या होगी। आपने कहा कि पीडीएम छोड़ देंगे, मैं आपको याद करा दूं कि ये एपीसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉल की थी जिसके अंदर पीडीएम का कयाम हुआ था, और तमाम पीडीएम की जमातें जो पीडीएम के जो नकात हैं उनके ऊपर मुत्तफिक हैं। सिर्फ जो एक आप इख्तलाफ राय आ रहा है वो कि कौन सा एक्शन किस वक्त लेना है स्ट्रेटेजी के ऊपर है, तो स्ट्रेटेजी के ऊपर अमली के ऊपर ओके, इख्तलाफ कुछ और होता है, लड़ाई कुछ और होती है। सहर आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की तरफ बढ़ना है, प्लीज बने रहिए। हैरान कुन एनआरओ हुकूमत का, भाई वैसे तो हुकूमत एनआरओ देती रहती है, इसलिए मैंने हैरान कुन एनआरओ कहा बिकॉज मुसरत साहिबा अब कोरोना ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल क्लैमिटी है, पूरी दुनिया में ये क्लैमिटी आई हुई है और लोग इसके अब जो वैक्सीन है दीगर जो ममालिक हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक हैरान कुन चीज हो रही है। वो जो वैक्सीन है, जो रूसी वैक्सीन है, वो 1560 रुपए की है ओरिजिनली, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी वो पाकिस्तान में 4200 रुपए की मिल रही है, लेकिन उस पर भी द माफिया इज नॉट हैप्पी और उसकी अब प्राइस करने का कहा जा रहा है जी कितनी 5000 रुपए। ये अगर मैं कहूं कि हैरान कुन एनआरओ नहीं है तो और क्या है। और अभी आप थोड़ी देर पहले अपनी परफॉर्मेंस की बात कर रही थी। देखिए बिनिश, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई कि एनआरओ से मुराद आपकी क्या है, कि हमने किसको देखे प्राइवेट सेक्टर में एक चीज है और जबकि गवर्नमेंट, अच्छा लेट मी टेल यू वन थिंग, आपने प्राइवेट को अलाउ क्यों किया वैक्सीन लाना? ये तो गवर्नमेंट का काम है, पूरी दुनिया में ये सरकार कर रही है, हुकूमत कर रही है, गवर्नमेंट्स कर रही है कि फ्री लोगों को वैक्सीन लगाएं। प्राइवेट को जब आप ये अथॉरिटी देंगे, नहीं आपने मुझसे पूछा तो मैंने कहा चले मैं दोबारा कर लूं, मैंने तो टाइम कम करने के लिए मुख्तसर सवाल आपके सामने रखा। अब आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किसको एनआरओ देने का कहा। जी बताइए अब। जी ठीक है,
अच्छा, यहाँ तक रह गई एनआरओ की बात, तो हमने एनआरओ उन लोगों को नहीं दिया जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट एक तरह से जो रोज कहते थे आज खत्म तो कल खत्म, एंड हम इस चीज के लिए मेंटली क्या हमने अनाउंस कर दिया कि अगर हमारी गवर्नमेंट जाती है तो जाए, किसी माफिया को हम एनआरओ देने वाले नहीं है। तो ये आपने अजीब सी इस तरह निकाली है, मैं आपको करेक्ट कर दूं। देखिए, सबसे ज्यादा ये कि पूरी दुनिया के अंदर आप अपने हमसाया ममालिक में भी देख लो कि प्राइवेट सेक्टर अलाउड है, ये काम हमारा है, लेकिन हम तो कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे किसी को भी। हम देखें एज जो ब्रैकेट हमने लगाई हुई है जिस तरह, और ये भी मैं बता दूं, ये पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो पैटर्न्स हैं उसी को फॉलो कर रहा है। आपने मेरी ब्रेक के दौरान जो कन्वर्सेशन सुनी होगी कि हम पार्लियामेंटेरियंस को लेकर के किसी को भी हम नंबरिंग के बगैर अलाउ नहीं कर रहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जब टर्न आई तो उनको लगी, हमारे वजीर दाखिला की जब टर्न आई तो उनको लगी, मेरे मियाँ को चूंकि हमने लगवाई थी वैक्सीनेशन ट्रायल में, उनके नहीं एंटीबॉडीज बने तो उन्हें भी अभी तक नहीं लगी। जब उनकी एज शुरू होगी तो हम इस हद तक इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। और हम और आप यकीन माने कि जो एक्सपो के अंदर गए हैं, हमारे ऑपोजिशन के कुछ लोग गए, कुछ मीडिया के हमारे सख्त क्रिटिक्स गए, मैं उनकी शुक्रगुजार हूं कि जो रियलिटी उन्होंने वहां पे देखी, उन्होंने नजम सेठी साहब से लेकर के बहुत सारे लोगों ने वो वहां से उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर और वीडियोस भी उन्होंने अपलोड किए। प्राइवेट इदारे क्यों आ रहे हैं, उन्होंने लूटमार क्यों शुरू की है, मैं उसका जवाब चाहती हूँ। बाकी आपकी सारी बातें प्राइवेट इदारों को पूरी दुनिया में अलाउ किया है। मैं अर्ज करूं प्राइवेट, जी मैं इसका जवाब देती हूँ। प्राइवेट इदारों को पूरी दुनिया में अलाउड है, ये आपको किसने कह दिया कि अलाउड नहीं है? अलाउड है, लेकिन उसमें ये भी अगेन कि ये कौन सी इसमें आप मुझे ये बता दीजिए मुसरत के बाकी दुनिया में कहाँ प्राइवेट सेक्टर अलाउड है? किसी एक मुल्क का नाम ले लें। अभी तो सारी की सारी जगह पे सरकार ही लगा रही है। सेक्टर पे कभी भी ओ भाई लगा सरकार रही है, लेकिन उसकी वजह ये, मेरी जान सुन ले, मुझे कंप्लीट कर लेने दे, फिर उसके बाद आप उसमें अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे सकती है। मैं नहीं कहूंगी, आपसे डिसएग्री भी नहीं करूंगी। मैं जो अर्ज कर रही हूँ वो ये कि प्राइवेट सेक्टर दुनिया की हर तरह की मेडिसिन के लिए अलाउड होता है। कोई एसओपीज ऐसे नहीं है कि कोई एक मेडिसिन। अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट कोरोना वैक्सीन। मुझे ब्रेक लेना है, वापस आके इसको मुकम्मल करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन करेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। मुसर्रत चीमा साहब जी बात अपनी मुकम्मल कर लें। आई हैड टू गो फॉर अ ब्रेक। हाँ जी बताइए। जी बिनिश, तो मैं अर्ज कर रही थी कि इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी मेडिसिन के लिए प्राइवेट मीडिया को बैन किया जाए। लेकिन आपकी बात इससे मैं एग्री करती हूँ कि प्राइस रेगुलेट करना गवर्नमेंट का काम है, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं बिल्कुल ये चीज टेकअप करती हूँ। और मैं अपने जितनी भी हमारे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब और हमारी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर, उनके हम सामने रखेंगे कि अगर प्राइस में एक्चुअल प्राइस वाकई इतनी है तो इसको बिल्कुल रेगुलेट करना गवर्नमेंट का काम है। ऑल राइट। जी निसार चीमा साहब, आपका लास्ट कमेंट एंड देन द फाइनल कमेंट्स में। मुझे ये मुसर्रत की वही बात सुन के मुसर्रत हुई। उन्होंने कहा कि ये बाकी रेगुलेट करना जो है वो हुकूमत का काम है। और देखें, बात यह है कि ये जो उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को हम बैन नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त यकीनन है, गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन प्राइसेस जो हैं, जो वैक्सीन की प्राइसेस हैं, उनकी अप्रूवल भी गवर्नमेंट दे रही है। वो भी ये है कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर ये कोई वो जो प्राइस मुकर्रर नहीं कर सकते। और किस कदर जुल्म है आवाम के साथ कि 1550 की जो वैक्सीन है उसको 6500 तक ले ली। डिफरेंट वैक्सीन की डिफरेंट प्राइसेस नहीं, रशियन जो वैक्सीन है जो इंपोर्ट करने की इजाजत दी गई है वो तकरीबन 1550 की कॉस्ट हो रही है, और यहाँ पे आवाम को 6500 की वो वैक्सीन दी जाए डोज जो है। किस कदर जुल्म है आवाम के साथ। देखें, ये तो 6.5 की तो कोई भी नहीं बिक रही ना। नहीं, कॉस्ट प्राइस बनती है जो कि डाल के उसकी जो लागत आती है मुल्क में इंपोर्ट करने के बाद। देखें मुसर्रत, आप पता कर रहे हैं, फिर पता क्या बात लंबी हो जाएगी। ट्रेड ने जो है कीमत रखी है 4225 रुपए, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि नहीं भाई, हमने तो बड़ी महंगी दवाई खरीदी तो उसको मजीद इसके ऊपर इजाफा करो, और फाइनली 5000 रुपए के ऊपर आकर इसकी प्राइस रुकी है। अब मुझे प्रोग्राम बंद करना पड़ा है, तो फिर मुझे बात जो है वो मजीद ज्यादा करनी पड़ी है। तो अभी वो यही कह रहे हैं कि 5000 रुपीज की कर दे। जी सर, 1 मिनट आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का लेटर भी इस पे आया है, और ये 2 डोज हैं। जब ये लगेंगी तो ये जाके अभी जो प्राइस है वो 9000 के करीब पड़ रही है उसकी कीमत। मैं ये समझती हूँ, मुझे ये बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी नेगोशिएशन और कौन सी खसूसी कंपनीज है कि भारत में तो वो 750 या 1500 पाकिस्तानी पड़ रही है,
यहाँ पर आपको इतनी महंगी क्यों पड़ रही है, इसके अंदर कौन इसके जो है इम्पोर्टर्स हैं और माफिया कौन सा है। बेहतर ये है कि माफिया करते हैं, आज माफिया आइडेंटिफाई कर लें। ऐसा ना हो कि पहले भी हम अद्वियात की कीमत पर चिट्ठे चलाते रहते हैं, आज भी जो मरीज कोविड की वैक्सीन लगाना चाहते हैं, जो लाजमी है, जो मैंडेटरी है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसको भी कारोबार बनाए। और बहुत कारोबार है आपके माफिया के लिए। बेनिश, उसमें मैं सिर्फ एक पैगाम दूंगी क्या सिर्फ एक फिक्रा, बेनिश को ऐसे चहेते इंपोर्टर तो नहीं है जिनको ये है कि ये इतना ज्यादा लूटने की इजाजत दी जा रही है मैं आवाम आपको को। टाइम दूंगी। जी 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 मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें देखें और मुशर्रफ भी देखें काइंडली कि इसमें कोई ऐसे चहेते इंपोर्टर तो नहीं है जिनको ये है कि इतना ज्यादा आवाम को लूटने की इजाजत दी जा रही है। जी मुसरत, अब ले लें लास्ट 40 सेकंड्स 50 सेकंड्स। जी उसमें जी मैं सिर्फ ये अर्ज करूं, पाकिस्तान को प्लीज आप भी कन्वे करें अवाम को कि इनफ हमारे पास क्वांटिटी है। हम अब नेक्स्ट जो वीक है अप्रैल का फर्स्ट वीक, उसमें हम 60 के अलावा जो बिलो 60 हैं उनको शुरू करने जा रहे हैं। इतनी क्वांटिटी होगी और हमें फिर कैंपेन चलाना पड़ेगी मीडिया की हेल्प से कि आए वैक्सीन लगवाएं। तो आप प्लीज गवर्नमेंट की वैक्सीन लगवाएं। गवर्नमेंट की वैक्सीन ज्यादा बेहतर भी है, मैं उनको बुरा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो तब आप जी देखिए डोनेशन वाली वैक्सीन ही है ना। हुकूमत ने क्या किया है वैक्सीन लगवाने के लिए, जो हमें खैरात में, चैरिटी में, देखिए जी बिल्कुल पूरे मुल्क में जी नहीं जी ऐसा नहीं, आई डिसएग्री विद यू, आई डिसएग्री विद यू। लेकिन देखें जी हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी है। देखें सर कामरान साहिबा, फिर आप सिंध के पास हेल्थ का अलग से बजट है, आफ्टर 18th अमेंडमेंट आप लोग अलग मंगवा लेना, हम तो मंगवा रहे हैं। आपको ये मैं बताऊं कि जब डॉक्टर्स के लिए मंगवाई थी तो फिर भी सिंध के अंदर ये शिकायत आई थी कि वीवीआईपी को आप लगा रहे थे और हेल्थ जो केयर के लोग थे उनको कम लगाई जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।